اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ محترم حاضرین، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے درس قرآن کے سلسلے میں سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں پڑھ کر سنایا ہوں۔ اب یہ مہینے کی مناسبت سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یعنی حج والا مہینہ، اور حج والے مہینے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں، ان کے واقعات، ان کے قصے اور ان کی زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 114 سورتیں رکھا ہے، اس میں 5 سورے جو ہیں پیغمبروں کے نام کے ساتھ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے سورہ نوح، ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے سورہ ابراہیم، یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے سورہ یوسف، ہود علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ ہے سورہ ہود، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک سورہ ہے سورہ محمد۔ تو 5 نبیوں کے ناموں سے اللہ تعالیٰ سورے بھی رکھا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی امتحانات کا سلسلہ ہے، آزمائشوں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بچپن سے لے کر آزمائشوں میں ڈالا، امتحان پہ امتحان، آزمائش میں آزمائش، اور الحمدللہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ جب امتحانوں کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کرتے چلے گئے، اور جب پورے امتحان ہو گئے تب وہاں سے اللہ کے انعامات ان کے اوپر نازل ہوتے چلے گئے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ان پر نازل ہوتے چلے گئے، اور انہوں دعا کرتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول کرتا چلے گا۔ تو یہ 2 حصے ہیں ان کی زندگی کے۔ تو ابھی جو میں آیت پڑھ کر آپ کو سنایا، اس کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو تو امن والا بنا، اس شہر کو امن والا، سکون والا، جو بھی آدمی یہاں آ کر رہتا ہے امن اور سکون کے ساتھ رہے، ایسا بنا اس کو۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے، میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے ہماری حفاظت کر، دور رکھ۔ بتوں کی عبادت کرنا نہیں، میں بھی، میرے بچے بھی، میرے اولاد بھی بتوں کی عبادت کرنا نہیں، اس سے تو ہماری حفاظت کر۔ تو یہ ایک آیت ہوئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ کیوں بتوں سے کیوں بچنا ضروری ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ بتوں کی بیماری بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیے ہیں، غلط راستے میں چلے گئے، ان کے اوپر بھروسہ کر کے، ان کو کچھ مانتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ طاقت ہے، انہوں کچھ اچھا کر سکتے ہیں، کچھ برا کر سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت ہے۔ تو یہ سمجھ کر کے لوگ کیا کرے ہیں، ان بتوں کے سامنے جھک گئے، اور جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کام ان بتوں کے لیے بھی کر کے شرک کے اندر داخل ہو گئے، اور ہمیشہ کی جہنم میں جانے والے ہو گئے۔ تو اس لیے ان سے مجھے بھی بچا اور میرے اولاد کو بھی بچا۔ اس کے بعد فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اور دعا کرتے اے اللہ، جو انسان میری بات مان کر میرے پیچھے چلتا ہے تو انہیں میرا ہے، جو آدمی میری بات مان کر، میری بات سن کر میرے پیچھے چلتا ہے انہیں میرا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری بات نہیں مانتا ہے، میری بات کا انکار کرتا ہے، میرے راستے میں نہیں آتا ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ جو نہیں آتا ہے تیری مرضی، تیرے بندے انہوں، تو پیدا کریا ہے، تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، نہیں سزا دینا چاہے تو بھی تو سزا دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے کی شان کو اور بڑائی کی شان کو اور
रहम करने की शान को उन्होंने बताया। फइन्नका गफूरुर रहीम, तो माफ करने वाला, रहम करने वाला, तेरी मर्जी। लेकिन जो मेरे रास्ते में चलकर मेरे तरीके में चलता है, मेरे पीछे आता है, तो उन्हें मेरा है। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके में चलने वाला कैसा उनका हुआ? इसलिए क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदगी के तरीके गुजारने का पूरा डायरेक्शन अल्लाह की तरफ से हुआ। तो अल्लाह के हुक्म के तहत मैं चलने वाला हूँ, तेरे हुक्म के मुताबिक, तो मेरे पीछे चलने वाले भी तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हुए, तो उन्होंने मेरे हैं। तो इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करे। अब फिर और एक भी उनकी दुआ है, कहते हैं बड़ी प्यारी दुआ है। अपनी मजबूरी को या अपनी परेशानी को, मामूल से आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है, दुनिया में ऐसा चलता है, हो सकता है मेरे से क्या भी, उन्हें जिसके ऊपर भरोसा कर ले रहता है, उसका बाप या नाना, दादा, बड़ा भाई, मामू, चाचा, नहीं तो अम्मी, नानी, उनके पास आकर इंसान क्या करता है, अब मेरे से क्या हो सकता है ना, मैं तेरे को नाक पड़ गया, अब तू क्या करता है, कुछ कर ले, अब तुम्हें क्या करती कर दो भाई, मेरे से हो सकता नहीं, मेरी ताकत नहीं है, अब मैं मजबूर हो गया हूं, मेरे से क्या हो सकता नहीं, तुम्हें क्या तुम करो। तो ऐसा यहाँ एक दुआ है अल्लाह ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। वो क्या दुआ? रब्बना, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालने वाले। असल में रब के माने क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोलते हैं। रब, रेबे रब, रब का माना पैदा करने के बाद उसके सारे जरूरतें पूरे करना, उसे क्या क्या होने को सब देना, जब भी उन्हें रब होता है। तो अल्लाह ताला पहली आयत में अपनी तारीफ बयान करता हुआ क्या कहता है कि मैं कौन हूं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। और वो अल्लाह कौन? रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का पालने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सारी जरूरतें पूरी करने वाला। तो उसके लिए तुम तारीफ करो अल्लाह की, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता है, पैदा किया, सारी जरूरतें पूरे करता है, तो फिर उसकी तारीफ करो तुम्हें अल्लाह की। अब किसकी तारीफ करती? मामूल से आदमी हमारे जबान में, हमारे इलाके में तारीफ करना का तो क्या, पोगुड़ना, आदमी को पोगुड़ना, बात में बड़े अच्छे आदमी भाई, वो शौकार बड़े अच्छे आदमी, बड़े रहम दिल वाले, बड़े खैर खैरात करने वाले। कब पोगुड़ता है आदमी, कब उनकी तारीफ करता है? उनकी तरफ से क्या तो भी फायदा ऐसे पहुंचा, तो क्या भी फायदा पहुंचे ना तारीफ करता है क्या? उन अच्छे आदमी जाओ भाई, उन्हें कभी 10 रुपया किसी दिए नहीं, 10 रुपए किसी देने, किसी खिलाते नहीं, किसी मदद करते नहीं, गरीब को, बीमार को, मजबूर को, किसी भी बेवा को, यतीम क्या भी देते नहीं। कहेगा उनकी तारीफ करना, तो उनके पास बल्ला पैसा रहता, समझे लो क्या करना वो पैसा। लेकिन अगर वो पैसे से आदमी दूसरों को मदद करता है, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्किनों की, मस्जिदों मदरसों को, तो क्या करते लोग? तारीफ करते हैं। क्यों? उसके पास जो है वो दूसरों को देता है, तो वो तारीफ के लायक है। तो अल्लाह ताला भी सारी दुनिया को बनाया है, खिलाता है, पिलाता है, सारी दुनिया को क्या चीज़ों की जरूरत है वो सारी चीजें देता है। तो इसलिए अल्लाह तारीफ के काबिल है, तारीफ के लायक है और हकदार है। अल्लाह, अल्लाह ही तारीफ के हकदार है। क्यों? उन्हें पैदा करने वाला, उन्हें खिलाने वाला, उन्हें पिला। तो यहाँ कुरान के अंदर जहाँ कहीं भी रब का माना आता है देखभाल करने वाला, खिलाने पिलाने वाला, सारी जरूरतें। मामूल से लोग क्या दुनिया में कौन तो अल्लाह के क्या मारता है, कब तो 10 रुपए दिया था क्या तू बन जाए, कब तो 10 रुपए जैसा क्या तो खिलाया था क्या, नहीं कहा तो भी कब तो चाय तो पिलाया क्या, डराता है, मारता है। मतलब एक आदमी का एहसान जो है वो एहसान जब आदमी उठाता है तो उसकी तारीफ करता है, उससे खुश होता है, उससे माया मोहब्बत करता है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार, उसका एक मार खाने के लिए तैयार, उसकी एक झिड़की सुनने के लिए तैयार। बैठे जब हंदे लो भाई, उन्होंने हम लोग बल्ला के एहसान करें, एक बात बोले तो हंदे लो। तो ऐसा अल्लाह ताला सारे एहसानात करने वाला, तो फिर अल्लाह ताला का एहसान हमारे ऊपर है तो हमें अल्लाह की तारीफ करना। और जब भी बुलाते हैं आए मेरे रब, आए मेरे रब का मतलब आए मेरे पालने वाले, मेरे सारी जरूरत पूरे करने वाला तुझ भाई, तुझ मेरा अल्लाह सारी जरूरतें पूरी करने वाला। तो यहाँ वो लफ्ज से दुआ करते हैं, क्या बोलते हैं? रब्बना, आए हमारे परवरदिगार, इन्नी अस्कंत बिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम, मैं मेरे औलाद को यानी मेरे बच्चे को ला करके तेरे घर के पास ऐसी जगह में छोड़ दिया हूं जहां कोई चीज पिकती नहीं है,
उगती नहीं है, क्या भी यहाँ पिकता नहीं, खाने पीने का जरिया क्या भी नहीं है, ऐसी जगह ला करके तेरे घर के पास ला करके छोड़ दिया हूँ, मेरी बीवी को मेरे बच्चे को लाकर तेरे हवाले कर दिया हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलात, क्यों ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए, इस जगह में नमाज को कायम करने के लिए मैं ला करके छोड़ा हूं। फजल अफिदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, और लोगों के दिलों को ऐसा बना, लोगों के दिलों को ऐसा बना, उनके दिलों में ऐसा ख्याल डाल, तहवी इलैहिम, उनकी तरफ मायल होना, झुकना, वहां आने की ख्वाहिश रखना। कौन? लोग पूरे भी किसकी तरफ? काबतुल्लाह की तरफ, उस गांव की तरफ। वर्जुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, और यहाँ आने वालों को ऐसा रिस्क दे, ऐसे फल फ्रूट अता फरमा, उन्हें वो रिस्क खाने के बाद तेरा शुक्रिया अदा करेंगे, उनको खाने पीने की सहूलतें बना। ये दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करके चले गए और अल्लाह के हुक्म से काबतुल्लाह बनाए, बाप बेटे दोनों मिल करके। और उस वक्त से आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हज का सिलसिला चलता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये हज का सिलसिला चलता रहेगा। अब इनकी ज़िंदगी हमें कई बार बोले हैं, मैं खाली 2-3 मिनट में टक 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 बोलता। पैदा हुए इराक में, ये उस गांव का नाम था मकाम उर, अलीफरे उर गांव का नाम। वो ज़माने में वहाँ एक बादशाह था और वो गांव पूरा बुतों की इबादत करते थे, पत्थरों की इबादत करते थे। इनके बाप भी वैसे काम करते थे, इनके बाप भी वैसे काम करते थे, बुता बनाते थे, बेचते थे। अब इनको भी वो इबादत करने के लिए कहा गया तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दिया, बचा लिया और अल्लाह के बारे में सोचने लगे। जब सोचने लगे, अब वो लंबा किस्सा है इनका, लंबा किस्सा है। होते होते अल्लाह उनको समझ दिया, अकल दिया, समझ गए। पहले तारे को देखे रात में, इन्हें कहते हुए मेरा खुदा क्या आकर बोली। फिर बोली थोड़ी देर के बाद वो तारे की रोशनी कम होगी, तो बोले थोड़ी देर रहकर थोड़ी देर हाफ हो जाने वाला, इन्हें मेरा खुदा नहीं हो सकता। उसके बाद चांद दिशा, थोड़ी देर बाद चांद दिशा। अब वो चांद को देखे, ओह इन्हें लाइटिंग बल्ला की देता है, इन्हें क्या तो मेरा खुदा क्या की, मेरा अल्लाह क्या की, मेरा रब क्या की, इन्हें क्या कि मुझे बनाया, सो ऐसा अगर सोचे। फिर सुबह को देखो तो चांद डूब गया, अरे रे रे, नहीं इन्हें नहीं। उसके बाद सुबह में सूरज निकला, लाइटिंग फुल, वो हर दिन तो चलता रहता है। इन्हें एक बार से सोचे, एक मौके से। उसके बाद क्या हुआ, हाँ इन्हें बड़ा है, खाला हाजा फलम्मा रा शम्स बाज़िग़तन खाला हाजा रब्बी हाजा अकबर, इन्हें बड़ा है, इन्हें मेरा रब क्या की, चलो सोचे। फिर फलम्मा अफलत, फिर शाम में सूरज भी गुरूब हो गया, तो क्या बोले नहीं, ये थोड़ी देर रहना फिर खत्म हो जाने वाले, इन्हों खुदा हो सकते नहीं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला जो है, मैं उसकी तरफ मेरे चेहरे को फिरा लेता हूँ। इन्नी वज्जहतु माने फिरा लेना, मैं चेहरा उधर कर लेता हूँ। हनीफन, और सीधा एकदम, मैं इधर उधर देखने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिरक करने वाला नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूँ। ये अल्लाह उनको हिदायत दिया। और अपने बाप को बोले, अब्बा ये चीज़ें कई को इबादत करते हैं, तुम्हें अपने हाथ से बनाते ही, ये क्या भी तुम को फायदा देते नहीं, नुकसान देते नहीं, क्या भी करते, कई तुम्हें इबादत करते हैं। अब उसके बाद वो लंबा किस्सा, लोग पूरे भी गांव छोड़कर बाहर गए, तो इन्होंने जा करके वो मंदिर में कुराड़ी लेकर पूरे बुताओं को तोड़े, बड़े बुत के खांधे पर लगा दिए, फिर बंद करके आ गए। शाम में लोग आके पूछे, भाई चलो अपने खुदाओं की इबादत करेंगे। वो देवल खोल के अंदर गया के देखे तो पूरे औंधा पड़े हैं, टुटको फुटको, हाथ नहीं, पाँव नहीं, नाक मुंह नहीं, ये बड़े को खांधे पर लगा डाले। अरे कौन करे ऐसा, ये सब पूरा कुरान के अंदर है। तो उसके बाद बोले वो बच्चा एक है भाई, नौजवान लड़का एक है, उन्हें हमारे बुताओं को बुरा बोलता है, बुलाओ पूछे कौन। उन्होंने बोले कौन का तो करे सो, अच्छा टिका को वो करे सो कौन का तो, ऐसे पूछो, ये बड़ा है नहीं, से पूछो। तो उन्होंने बोले वो काम तो बात कर दिया। अरे बात नहीं करते तो फिर उनको कहीं पूजा करती हैं तुम्हें। हाँ भाई करेक्ट, जो बच्चा बोलता है। लेकिन आदमियों को क्या है, हक बात को मान लेने का वक्त है तो मान लेना, लेकिन मानता नहीं आदमी जनरल से। जरा आदमी मानते, बल्ला के आदमी मानते नहीं।
क्या करे, बादशाह के पास जाकर रिपोर्ट कर डाले, बादशाह बादशाह देखो बादशाह, क्या ये लड़का नौजवान ऐसा हमारे बुतों को बुरा बोलता है, तोड़ फोड़ कर रखा है, क्या करना। हाँ बुलाओ, बुला को हाँ बातचीत हुई, कौन तेरा खुदा। तो उन्होंने बोले मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता है मौत देता है। हाँ वो कितना बड़ा काम, मैं भी जिंदगी मौत देता हूँ। एक आदमी को बुलाया, अच्छे आदमी को, उसे कत्ल कर डाला, और जिसके ऊपर मौत की सजा हो गई थी जेल में, एक आदमी को उसे बोला जा मैं तुझे आजाद करता हूँ। तो बोला देख जिंदगी और मौत का मालिक मैं भी हूँ। तो इन्हें सोचे ओह वैसा क्या, तो ये रूट में आता है। अच्छा मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल कर मशरिक में डुबा। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वही तल्लज़ी कफर, जो वो बादशाह था काफिर था, उन्हें भी तो शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। ये कहाँ हो सकता है, सूरज को निकालना डुबाना किसके हाथ में है, वो अल्लाह के हाथ में है। तो ये इम्तिहानात हुए। अब उसके बाद लोग क्या है, उनको ये आ गई प्रेस्टीज, उनका उर्दू में अना कर बोलती, अनानियत, ईगो सेटिस्फाई होना। अरे हम इतने पूरे इतना ये बच्चे के सामने हार गए ना, क्या करना, चलो अंगार चलो, अंगार में उठा के फेंक। लेकिन अल्लाह ताला आग को फरमाया खुलना या नारू कूनी बर्दों व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा मेरा इब्राहिम को। उन्होंने डालते ही अल्लाह हुक्म दिया तो आग ठंडी हो गई, सलामती के साथ उठकर निकला। अब तो समझना था, अभी समझे नहीं। उसके बाद अब्बा को बोले सलाम अलैकुम, जाकर निकल गए। गाँव छोड़े, रिश्तेदारों को छोड़े, इलाका छोड़े, घर को छोड़े, बाप को छोड़े, निकल कर चले। तो ऐसे इम्तिहान। फिर बीवी सारा से शादी हुई। शादी होने के बाद एक रास्ते में जाते थे तो वहाँ का बादशाह खूबसूरत औरतों के पर उसकी निगाह बुरी निगाह रहती थी। अब उन्हें क्या करता था, भान भाई जाते ही तो क्या करता नहीं, मियाँ बीवी को तो जरूर खरीद लेता। अब उन्हें जाते थे तो ये बात मालूम थी वो रास्ते में, तो इन्होंने कौन होते में जाते हैं सो क्या है, मेरी भान नहीं कर बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरी भान भी मैं जाते ही। लोग जाकर बोले उन्होंने भान भी भाई जाते हैं। तो लेकिन बहुत खूबसूरत थी उन्होंने, एकदम पर्सनालिटी अच्छे ही। अच्छा तो खरीद लगा, बुला लगा क्या। तो इन्होंने पूछे बीवी सारा, मैं आपकी बीवी नहीं क्या, मुझे भान कर बोले ना। तो जे दीवाने आदमी, आदम की बेटी तुम्हें भी, आदम का बेटा मैं भी, वो हिसाब से भाई भान। लेकिन रियल में मियाँ बीवी, ऐसा मैं इनसे बचने के लिए बोले आके, लेकिन छोड़े नहीं, बुला लग गए। बुला ले जाकर देखा एकदम खूबसूरत थी, मैं इसे कैसा तो हासिल करना, इनको मेरी बीवी बना लेना। अगर क्या करे, एक रूम में बंद करो घर को, अंदर घुस को गया। जाते ही उन्हें अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मुझे बचा ले, तो अंगार आ गई बीच में, आन चाहिए, इन्हों इधर बीच में, डर को भाग आ गया। एक दिन रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन देखा, आहा बोला क्या भाई औरत को लेकर, बोली शैतान को लेकर कहीं ना तुम्हें, मैं जा सकता न होना वो औरत के पास। ये सब है किस्सा हदीस के अंदर। तो उसके बाद उन्हें समझ गया नहीं इन्हों मामूली आदमी ने, इनके साथ अल्लाह की मदद है। तो उसके बाद उसकी बेटी को बीवी हाजिरा को दिया, शादी करके भेजा। अब वो बात के लोग क्या करा रहे, वो नौकरानी काम वाली औरत को दिया आकर को लिखे। हालांकि दरियाद में क्या लिखे, नहीं इन्हें इतने बड़े अल्लाह के नेक बंदे ही, तो चलो मैं अपनी बेटी देखो उनकी शादी करेंगे करको, बेटी को देखो शादी करा, बीबी हाजिरा को देखो शादी करा। बाद में आए, अब बीबी हाजिरा को अल्लाह ताला पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया। तो वो बीवी को लाकर काबतुल्लाह के पास, जब उस वक्त क्या भी नहीं था, चटियल मैदान था और पहाड़ां थे, गुट्टे फतरे थे, क्या भी नहीं, तो उनको लाकर वहां छोड़कर चले गए वहां से। और बड़ी बीवी को बाद में बेटा पैदा हुआ इसाक अलैहिस्सलाम, उनको ले जाकर अब जो फलस्तीन है बैतुल मुक़द्दस, वहां ले आकर उनको छोड़े। तो यहाँ एक बीवी बेटा, वहां एक बीवी एक बेटा, तो 2 जगह उनका खानदान फैलता गया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी। अब उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाद में ज़बह करने का वाक़या भी देखे, बाद में पूछे तो वो बेटा भी राजी हो गया और ज़बह करने के लिए तैयार भी हो गए, बच्चे को घर से बुला ले जाकर। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, बस इब्राहिम मैं देखना चाहता था तुम्हें ख्वाब को क्या करती, अब तुम्हें ख्वाब को पूरा करने के लिए तैयार हो गए हैं, ओके रेडी, अब क्या भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं, जाओ बाप बेटे जाओ खुशी से और एक बकरे को ज़बह करो। तो यहाँ तक इनके इम्तिहान, यहाँ तक इम्तिहान, और वो भी भारी भारी इम्तिहान। अब उसके बाद बाप बेटे दोनों मिलकर के काबतुल्लाह की तामीर कर बनाए। बनाने के बाद अब इनके इम्तिहान खत्म हो गए। अब वहां से इनके सवाल शुरू हुए, अल्लाह ये घर को अमन वाला बना, ये गांव को एक, और लोगों को यहाँ के उनके दिला यहाँ को खिंच को ऐसा रखा,
बना, ये दुआ जो अभी पढ़े। लोग वहाँ जाने का शौक इरादा, आज दुनिया में कौन सा मुसलमान ऐसा नहीं है बोलो मैं जाता नहीं, वाह मुझे वहाँ जाने का ख्वाहिश नहीं, अरमान नहीं कर बोलने वाला कौन है? वैसा कौन सा है तो दलिंदर ही चुने, उससे बड़ा दलिंदर कौन नहीं। कैसा जाने का इरादा, जाने की ख्वाहिश, जाने की चाहत नहीं सवाल। पैसे नहीं, पैसे और हो को गया नहीं वो अलग बात है, लेकिन मुझे पसंद नहीं भी वहां जाने का, मक्के जाने का पसंद नहीं, काबतुल्लाह जाने का मुझे पसंद नहीं करके बोलता है अगर कौन तो भी इंसान बोलता है तो उससे बड़ा दलिंदर कोई नहीं, उससे बड़ा मनहूस है कौन भी नहीं। हर आदमी वहां जाना चाहता है, सारी दुनिया के मुसलमान एक बार तो भी मैं काबतुल्लाह के पास जाना, तवाफ करना, नमाज पढ़ना, उमरा करना, अल्लाह का घर देखना, ये हंका से दीदार करना अगर तो बहुत तड़पती लोग। तो अल्लाह ताला के सामने दुआ क्या करे नो, अल्लाह लोगों के दिलों को यहाँ लगे सरका कर, तो लोगों के दिल वहां लगते हैं, जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह यहाँ रहने वाला को अच्छे फल फ्रूट्स अता फरमा, उनको अच्छा रिस्क दे, खाने पीने की सहूलत कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोग मक्के को जाके हैं, देखे हैं, ऐसे ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जो यहाँ पैदा होते हैं, पिकते हैं, लेकिन हम लोग मिलते हैं उनको मिलते हैं, आराम से उन्हें खाते पीते हैं, अमन के साथ, सुकून के साथ उनकी जिंदगी गुजरती है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत क्या है, खतना करना। उससे पहले के लोग खतना करना मालूम नहीं था उनको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा बड़ी उम्र में उन्होंने भी खतना कर लिए, तो इसे सुन्नत इब्राहिमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। तो उनके औलाद में, उनके खानदान में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला नबी बनाकर भेजा। बाकी के पैगम्बरान पूरे भी उनके बड़ी बीवी के छोटे बेटे, बड़ी बीवी का बड़ा बेटा, लेकिन इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोटा बेटा, बड़ा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, छोटे बेटे उन्होंने। तो उनके औलाद में सारे पैगम्बरान को जितने भी हैं वो सारे पैगम्बर उनके औलाद में आए, उसी इलाके में आए। और पैगम्बरों का इलाका उसका नाम ही फलस्तीन और मुल्क शाम जो सीरिया जो है वो पूरा भी पैगम्बरों का इलाका, उसका नाम ही। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला यहाँ पैदा कराया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एकदम बिल्कुल कैसा रिश्ता आपका, नबी साहब फरमाते अभी इब्राहिम, मेरे बाबा इब्राहिम, बाबा का मतलब तो सिलसिले के साथ, चैन के साथ। तो फिर हम लोग अतहियात में भी वो सिखाएगा, क्या सिखाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। दूसरे पैगंबरों से मुशाबहत नहीं दी गई, दूसरे पैगंबरों के जैसा पूछा नहीं गया, सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसा तू रहमत नाजिल करा वैसा हमारे नबी पर रहमत नाजिल कर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जैसा बरकतें नाजिल किया है वैसे बरकतें हमारे नबी पर भी तो नाजिल कर ऐ अल्लाह। और हमें नमाज में कितने अजमा पढ़ते हैं, कितने बार पढ़ते हैं, हमें कितने नमाजा पढ़े तो उतने नमाजा में भी सलाम फेरने से पहले ये दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कितने अजमा पढ़ते हैं, एक मस्जिद में कितने अजमा, 500 खत में कितने बार पढ़ते हैं, वैसे कितने मस्जिद हैं, वैसे कितने गाँव हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने स्टेट हैं, कितने कंट्रियाँ हैं, सारी दुनिया में अजमा कितने अजमा नमाज पढ़ते हैं, उतने बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करते हैं। और कैसे दुआ, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर तो रहमत नाजिल किया वैसा हमारे नबी पर भी नाजिल फरमा। तो मुशाबहत भी तकरीबन सूरत शक्ल भी वैसी थी इन दोनों की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुशाबहत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब फेस कटिंग भी दो जन का तकरीबन एक ही जैसा रहती दो जन। तो वैसा अल्लाह ताला उनको उनकी सारी दुआएं कबूल करा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्का सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पीसफुल एरिया दुनिया में कौन सा है तो मक्का, पूरी दुनिया में सबसे पीसफुल एरिया, सुकून वाला इलाका कहाँ है भाई, सारी दुनिया वाले बोलते हैं मक्कातुल मुकर्रमा है। उन्होंने दुआ करे, अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लिया और सारी सहूलतें अल्लाह वहाँ बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-20 लाख ये हाजी हजरात वहाँ पहुँच गए हैं। दो बातें बोलकर बात को ख़त्म करता हूँ। सबा हमना को 7वीं तारीख हमारी चांद की 7वीं, लेकिन जो लोग अरब मुल्क वाले हैं
उनको चांद की 8वीं तारीख। हाजी लोग जो क्या करते हैं, सवा सुबह ही हम लोग को 7 तारीख है, उनको 8 तारीख को सुबह की नमाज पढ़ने के बाद नहा धो करके एहराम बांध लेते हैं। एहराम बांध लेकर के निकलते हैं। हज का सिलसिला शुरू होता है उनको। हज का सिलसिला शुरू होता है, मैदान में जाते हैं, फिर वहाँ से सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं वहाँ, फिर रात को भी वहाँ चलते उसी मैदान में। उसके बाद सुबह में उठने के बाद फिर अरफात के मैदान में जाती 9 तारीख को। पहले मीना के मैदान में रहती, फिर अरफात को जाती, फिर वहां से मगरिब के पहले तक पहुंचना। चांद की 9 तारीख, उनके चांद के 9 तारीख को मगरिब के सूरज डूबने से पहले अरफात के मैदान में बाउंड्री में अंदर का आ गया तो उसे हज होता है। उन्हें क्या तो भी जा सका नहीं एक बार का वो टाइम तक, तो उसे हज नहीं। उन्हें तवाफ करा तो भी हज नहीं, खाली उम्रे का सवाब मिलता है, हज का सवाब मिलता नहीं। हज के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है, मेन रुकन, अहम रुकन जो है वो अरफात के मैदान में रुकना। अरफात के मैदान में रुकना थोड़ी देर। अब लोग जोहर से चले जाती, 10-11 बजे से चले जाती वो जगह में, और दिन भर पूरा रो रो के दुआएं करती, खड़े कर बैठ करके पूरा वक्त दुआओं में लग जाता है। आसमान की तरफ हाथ उठाकर, निगाह उठाकर अल्लाह से रो रो कर अपनी दुआएं मांगते हैं। तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सारे मुसलमानों के भी ऐसा मौका ज़रूर अता फरमा। हमें यहाँ जितने भाइयाँ बैठे हैं, सारे भाइयों को भी हज का मौका ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कम से कम एक बार अता फरमा, कि हमें भी हज के मनासिक अदा करेंगे और अरफात के मैदान में जाकर अल्लाह तेरे दरबार में हाथ उठाकर आजिज़ी से गिड़गिड़ा कर रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, हमारे माँ बाप के गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, हमारे बीवी बच्चों के, हमारे सारे रिश्तेदारों के गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, और सारी दुनिया के मुसलमानों के गुनाहों की माफ़ी हम लोग को मांगने का एक मौका अता फरमा। आमीन। तो उसके बाद मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में नहीं पढ़ेंगे, ज़ोहर असर पढ़ लेते। मगरिब की नमाज और इशा की नमाज इसमें जाकर पढ़ती, दूसरे मैदान में जाकर, मुज़दलिफा वो मैदान का नाम, वहाँ जाकर और रात भर वहाँ रहती उन्होंने। वहाँ जाकर मगरिब इशा मिला को पढ़ती, पूरी रात वहाँ रहती। फिर सुबह को 10वीं तारीख को, उनके हिसाब से 10वीं तारीख को चांद के निकलते, मीना के मैदान को आते, वहाँ कंकरियाँ मारती शैतान को। फिर काबतुल्लाह के पास जाती, तवाफ करना 7 बार, सफ़ा मरवा में 7 बार फिरना, कुर्बानी का जानवर बकरा कुर्बानी करना, उसके बाद सर के बाल निकालना। तो ये 4-5 काम उस दिन करते हैं, वहाँ को उनका हज हो जाता है। फिर 11वीं तारीख को एक बार कंकरियाँ मारना, 3 शैतानों को भी, यहाँ 7 वहाँ 7 वहाँ 7, 20 पे। वैसा फिर 13वीं तारीख को भी 10, 11, 12वीं तारीख, चांद की 12वीं तारीख को भी मारती, वहाँ को हज के काम पूरे हो जाती। उसके बाद लोग निकल कर अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। आते वक्त में आखिर में एक बार तवाफ विदा कर लेती, एक बार तवाफ कर लेकर वहाँ से निकल पा जाते। ये हज का सीजन और हज के काम ये पूरे वो लोग करते हैं। तो हमें यहाँ रहकर हम क्या करते हैं, उनकी याद ताज़ा करने के लिए वो काम को बकरीद की ईद की नमाज पढ़ते हैं और हमें भी कुर्बानी देते हैं। तो एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इतने सारे अच्छे कामों की वजह से अल्लाह ताला उनको एक लक़ब दिया। क्या लक़ब दिया? वतख़ज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। खलील, खलील का तो जिगरी दोस्त, अपना दोस्त बना लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इसी तरह सारी ज़िंदगी कुरान मजीद को पढ़ने, सुनने, समझने और कुरान के आयतों के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।